aldol condensation and its variation. So when to think of aldol and how you can give the product of aldol condensation very fast, I'm going to tell you that. So when to think of aldol? Think of aldol. So any reaction, if you want to be very much conversant with that, you have to start thinking what product is actually will be given on a particular reaction, when to form what, and we can start making association with thinking when we can give aldol condensation. So from reactant side, you can think about aldol when an aldehyde and ketone, aldehyde or ketone is having extractable alpha hydrogen in presence of a strong base think of aldol. So many times, suppose you have been given Na2CO3. So what is Na2CO3? It is a salt, right? Salt of a strong base and weak acid, right? So hydrolysis of salt tells us that if such salt will be hydrolyzed, it will have pH more than 7, right? So it's a basic. So many times you have to understand what kind of a variation you will be able to see in aldol condensation. So if it is there, an aldehyde and ketone containing extractable alpha hydrogen in presence of a strong base, mostly NaOH, KOH, but most of the time you can also see for the variation like Na2CO3 etc. You have to think in terms of aldol. Many times even aldol may take place under the acidic medium. So alpha hydrogen is actually an indication that it could be possibly an aldol. So you should be aware of these things. What is from the product side? When you should think about aldol from the product side. So first, beta hydroxy aldehyde or ketone think of aldol, or second, if double bond is in conjugation with CHO or C double bond of aldehyde or ketone, you have to think of aldol. So as far as identification is concerned, it should be very clear that we can think about aldol condensation when we are having extractable alpha hydrogen plus a strong base, or from the product side if beta hydroxy aldehyde or ketone or double bond is in conjugation with CHO of aldehyde or C double bond of O of ketone, you have to think about the aldol condensation. So this is the thinking part, right? What is the next part? How to give the product of aldol condensation. So इसको हटा दें. How to give the product of aldol condensation. So next one will be how to give the product of aldol condensation.
So next part will be how to give product of aldol condensation. आप एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट कैसे देंगे? CH3COH NaOH. I'm taking an example of self-aldol. I'm taking an example of self-aldol. So step number 1. Step 1. Go to alpha location, extract H plus to generate nucleophile. This is my first step. So what we are going to do? We are identifying the alpha location. So this is my functional group. The carbon attached to the functional group is alpha carbon and that location is known as alpha location. तो मैं इसके alpha location पर जाकर step 1 में एक H plus extract कर ले रहा हूँ. So I am generating a carbon ion और से conjugate base H plus अगर कोई दे रहा है तो वो एसिड की तरह काम कर रहा है. तो what is so special about this alpha location? तो अर्ली डेज में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर हमें एक चीज भी सीखें तो इस अल्फा लोकेशन में स्पेशल क्या है कि ये माइनस साइन, दिस माइनस साइन इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड या एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि कार्बन आयन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है. अगर कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है तो ये लेस बेसिक हो रहा है. लेस बेसिक हो रहा है इसका मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है. सो अल्फा लोकेशन इज एसिडिक. व्हाई इट इज एसिडिक? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन वाया रेजोनेंस. राइट, ये लोकेशन एसिडिक हो जा रही है. तो इससे हमको एक जनरल गाइडलाइन मिल रहा है कि अगर ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर ऐसा ग्रुप अटैच हो जो कि हमारे कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, वो CH को क्या कर रहा है? एसिडिक कर रहा है. अब एसिडिक कर रहा है मतलब यू आर रिच और पुअर, इट्स ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, राइट? ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप रिच हो कि पुअर हो. उसी तरीके से ये एसिडिक कर रहा है. व्हेन आई एम सेइंग वी आर हैविंग द बेस, उसके रिस्पेक्ट में इसको इतना एसिडिक कर दे रहा है कि it has attained the capability of losing H plus, right? So पहला आंसर मैंने किया आपको इस पार्ट का कि why this location is special, because जब ये H plus लूज कर रहा है so it is able to generate a carbon ion and that carbon ion is extra stable. So this location is acidic. So the first step is clear and why this location is acidic is also clear. Second step is very simple. We know the characteristic is nucleophilic addition. So step 2 is carry out nucleophilic addition. क्या करोगे आप? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कैरी आउट करोगे. व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? कॉपी कॉपी कॉपी. इस पूरे स्ट्रेट चेन को हमको क्या कर लेना होता है? कॉपी कर लेना होता है. एंड वी आर गुड एट इट, राइट? और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है, व्हाई दिस न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन. तो उस पर थोड़ा सा एडहेसिव डालकर यहां पर चिपका देते हैं, राइट? जब हम ऐसा करते हैं तो डबल बॉन्ड ओ नहीं रह सकता है क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे. तो वी चेंज इट टू O माइनस और OH. सो ये कन्वर्ट हो गया OH में. सो दिस इज माई विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. और बीटा के ऊपर कौन है?
OH, so this is बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जो लोग ये इधर उधर से देख रहे हो, देखने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1 है। आप अल्फा लोकेशन पे जाओ, H+ खा जाओ, उस लोकेशन पे थोड़ा एडहेसिव डालो और उसको न्यूक्लियोफिलिक साइट पर जाकर चिपका दो और डबल बॉन्ड को OH बना दो। राइट, ये सब तो किसी बच्चे को भी सिखा देंगे ना तो कर लेगा। राइट, कि यहां से एक H खाना है, एक दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ना है, वहां पर थोड़ा सा फेविकॉल लगा दो, जाकर C डबल बॉन्ड O वाले साइड पे चिपका देंगे। दिक्कत क्या होगी, उस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो उसको डबल बॉन्ड को किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज एल्डिहाइड एंड अल्कोहल से एल्डोल आ गया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम द रिएक्शन कंडीशन इज सच, होता क्या है, इट लूजेज वाटर and it loses water, something like this loses water via E1CV। सिर्फ अभी ना तुम लिखते जाना, इसको ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं मैं ये सब पॉइंट्स जब छूट जाएंगे ना तुम्हारे, मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये क्या करता है, E1CV। अब ध्यान में रखना कि बहुत बार लोग आपको बता देंगे कि E1CV यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मेरे लिए बड़ा सिंपल है, जब मल्टी स्टेप रिएक्शन हो तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। मेरे लिए एक बहुत क्लियर है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी। तो मैं हमेशा बोलता हूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज काइनेटिक ऑर्डर 2। E1CV का काइनेटिक ऑर्डर लिख लेना कि काइनेटिक ऑर्डर 2 है। मैचिंग में IIT ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है और जो लोग मार्केट के बुक से पढ़ रहे होते हैं उनको ये सब मिस्टेक हो जाता है। तो E1CV का काइनेटिक ऑर्डर क्या है, 2। अब तुम मुझसे पूछोगे कि E1CV क्या होता है, तो सिंपल ये है कि OH माइनस एक बैड लिविंग ग्रुप है। तो अगर कहीं पर भी तुमको बैड लिविंग ग्रुप लाइक OH माइनस F माइनस हटते दिखे तो वो E1E2 नहीं हो सकता है। लिख लो ये, इफ बैड लिविंग ग्रुप लाइक OH minus and F minus is leaving, probable path could be E1CV. Probable path could be E1CV. E1CV। अब ये नाम बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि लोगों ने बोल दिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, किसी स्टेप में बोल दिया, कोई एक स्टेप है जहां पर वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, काइनेटिक ऑर्डर क्या होता है E1CV का, 2 होता है। काइनेटिक ऑर्डर ऑफ E1CV इज 2। दूसरी चीज E1CV के बारे में बता रहे हैं जिससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, कम से कम जिस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। आइसोटोपिक एक्सचेंज इज पॉसिबल इन E1CV, आइसोटोपिक एक्सचेंज विल बी पॉसिबल। इसका भी मैं मतलब बता देता हूं। सपोज करो कि तुम रिएक्शन कर रहे हो वाटर की जगह D2O में। अब एसिड बेस रिएक्शन क्या है, तो होता है, मैं बार बार बता चुका हूं कि यहां पर इक्विलिब्रियम है। अब इसने H+ लूज किया तो क्या बना, CH2 माइनस। अगर D2O में है तो हो सकता है कि कुछ रिएक्शन ये क्या बना ले, CH2D बना दे। उसी तरीके से इसके एलिमिनेशंस कैसे होते हैं, यहां पर माइनस साइन आ गया, एक H+ लूज किया और क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ये यहां पर मूव किया और ये यहां पर मूव कर गया। तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, अगेन सेम रीजन से कि ये थोड़ा उसको स्टेबलाइज कर देगा। राइट, सो इट लूजेज वाटर इन एल्डोल कंडीशन, it loses water via E1CV, so possibly you can able to see some isotopic exchange also। जैसे फ्लोरीन के साथ you should be able to see some isotopic exchange। तो देखना मैचिंग में GOC या कहीं पर भी ये क्वेश्चन होगा, उसको कर आराम से बैठ के खुद से कर लेना, आराम से जगह। 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। E1CV के बारे में कब सोचेंगे, एक जब पुअर लिविंग ग्रुप आराम से लीव करता हुआ दिख रहा है, OH माइनस एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लीव करता हुआ दिख रहा है,
दूसरा, अगर कहीं आपको एविडेंट आइसोटोपिक एक्सचेंज दिखे तो वो E1 और E2 से नहीं होगा, दैट इज पॉसिबली इज हैपनिंग वाया E1CB। तो क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ CHO, राइट। स्टेप 3 रिमूव H प्लस एंड OH माइनस। ध्यान में रखना, H प्लस और OH माइनस तो हट ही रहा है, लेकिन डिफरेंट पाथ से हट रहा है, ठीक है। H प्लस एंड OH माइनस वाया E1CB such that the formed double bond is in conjugation with CHO और C डबल बॉन्ड O। तो इसको कंप्लीटली नोट कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया, पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था हाउ टू गिव द प्रोडक्ट आउट ऑफ रिएक्टेंट। देयर विल बी थर्ड स्टेप which is very important for me, how to give reactant from the product, because many times many of us will be able to solve a question very fast, जैसे पैसेज प्रॉब्लम आया 9 मार्क्स या 12 मार्क्स का, and if we can do it in 2 minutes, this is advantage, right? हमारा अगर जेई को समराइज करना है तो हमें क्या चाहिए, पर मिनट 1 मार्क्स, बस। बहुत बार यू पैनिक, बट हमें क्या चाहिए, पर मिनट 1 मार्क्स। 360 आ गया तो चल जाएगा काम, कितने भी मार्क्स का टेस्ट हो, 420 का भी हो, 360 का भी हो, 480 का हो, आज तक 504 का भी लेगा तो भी हमारा काम थोड़ा चल जाएगा, राइट। सो नन ऑफ द टाइम the JEE was more difficult than 1 marks per minute. So sometimes we panic and we press the panic button कि अच्छा चलो 10 मिनट बर्बाद हो गया, 10 मिनट बर्बाद हो गया, खुश हो जाओ, 385 लाना है, राइट। 10 मिनट और बर्बाद हो गया। Until unless you start pressing your panic button, nothing wrong will happen. It's a sure and short examination. You have prepared, you will qualify. If you have not prepared, you are not going to qualify. राइट, यहाँ पर कोई इन सिंगर यॉर्कर नहीं आएगा तो हम लोगों के पास चॉइस रहेगा, अच्छा इसको फ्रीज कर देते हैं बाद में बनाएंगे, राइट। इमेजिन विराट कोहली को पता चल जाए ये 60 बॉल है जो तुमको मिलने वाला है पहले, तो वो 50 इजी बॉल चूज करके 4-6 मार के बोले 10 बॉल नहीं खेलने का है, ठीक है। तो वी कैन डू दैट वे एंड यू शुड बी वेरी क्लियर। ये क्लियर है, इसको ध्यान में रखना। वी विल यूज दिस at some point of time. Next is, yes please, यहां पर देखोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो एडिशन ही हो सकता है, राइट। बाकी जो रिएक्शंस हमारे हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो सकता है। यहां पर हम लोग कुछ ऐसा किया ही नहीं है जहां पर हम लोग को रीडिटरमाइनिंग स्टेप की चिंता होनी चाहिए, ठीक है। मेनी टाइम्स पीपल विल टेल यू कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो एसिड बेस रिएक्शन है। मेरे लिए क्या है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहां पर वी आर कैरिंग आउट द मेजर स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन अदर देन दीज पीपल, राइट। नेक्स्ट है टू गिव रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट एंड मेनी पैसेज प्रॉब्लम विल हेल्प यू इन डूइंग दिस। जैसे मैंने सुबह में बताया था कि हाउ टू गिव द स्टार्टिंग रिएजेंट ऑफ अल्कोहल्स, तो इट लुक्स सिंपल, but when you go into the examination scenario and apply that method will work. Sometimes it will make your thinking a bit simpler,
और आईआईटी के साथ ये ध्यान में रखना है, या किसी भी एग्जामिनेशन के साथ में ध्यान में रखना है कि इफ यू आर ऑन द बेसिक्स प्रॉब्ली हाई चांस ऑफ क्वालिफिकेशन, राइट। हम 11 12 में है और 11 12 के बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो हमारे क्वालिफिकेशन का चांस ज्यादा होगा। हम पीएचडी स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे तो मे बी आप ऑफ ट्रैक हो जाओ। तो हाउ टू गिव रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट? तो देयर आर टू प्रोडक्ट्स, राइट। फर्स्ट वन इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा कुछ है। तो आप समझ सकते हो कि किसी ने ऐसे हमें कुछ दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया। So why I am able to think this is aldol? Because what I am able to realize that this is a beta hydroxy ketone. So your first step is step 1. Step 1, go to beta location. ऐसे भी यहां पर OH है, अल्कोहल है, चले जाओ, राइट प्लेस टू गो ना। गो टू बीटा लोकेशन, ठीक है, ये पहला स्टेप है। स्टेप 2, लुकिंग टुवर्ड्स CHO और C डबल बॉन्ड O ब्रेक CC बॉन्ड। लुकिंग टुवर्ड्स CHO और CC डबल बॉन्ड ब्रेक द CC बॉन्ड, ठीक है। स्टेप 3, where you are standing now, make that OH double bond O to another carbon supply 1H। क्लियर है क्या? जैसे अगर मुझे ये प्रोडक्ट मिला और ऑप्शन से मुझे सामने से नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, इसको नोट कर लो 1 मिनट के लिए, मैं फिर इसको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं गया, I went to my, you can read what has been written, you went to the beta location। कहां पर? उस लोकेशन पर जहां पर OH है। Now looking towards this C double bond O, I broke this bond। Where I am standing now, make that double bond O and to another carbon I supplied H। So what I am able to see that these two on reaction produces this beta hydroxy ketone, right। जहां पर मैं खड़ा हूं वो न्यूक्लियोफाइल था या लोकेशन था, और जिसको मैंने तोड़कर भगा दिया वो क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। दिस इज जस्ट सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। क्लियर है? आपको जैसे प्रोडक्ट मिलता है, देयर आर मेनी टाइम्स यू आर नॉट श्योर, राइट। CHO, right, I saw this and I don't know what is my starting reagent, I have to do this, right। So this was my starting reagent and that was the final product. You have to do it in flash and it will take certain amount of time. It's going to take 5 seconds for you, and you can see the passage problem and try to implement the method. You will become much more faster. I remember few years it has happened that people have done 1.2 minutes or 1.5 minutes में passage problem उन्होंने कर लिया, because they did not apply anything,
उनको दिखा कि कहीं COH है तो कहां से आता है, CN से आता है, उन्होंने वापस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सोचा, and they are able to do it very fast. You have to adapt that, but try these methods on the questions rather than thinking कि अच्छा ये क्यों कर रहे हैं. ठीक है, इतना क्लियर है क्या? Should I remove this? So you will be get the clear idea about कि ये एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, राइट? ये एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है एंड योर मेनी क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, राइट? अब बच्चा क्या सोचता है कि क्या यहां पर कैनिजारो नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगा, राइट? तो पहले CH2 माइनस बन गया और उसने अटैक कर दिया. हम लोग कंडीशंस भी देखते हैं, ये कोई नेम रिएक्शन होगा, ठीक है? दिस इज अ नेम रिएक्शन. वी मे और मे नॉट नो दिस, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एनसीईआरटी. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, राइट? ये चीज हटाए. The second product was double bondage in conjugation with aldehyde और ketonic group, right? So same है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है. Double bond is in conjugation with CO and CHO. ठीक है? Again the steps are very simple. Suppose I take something like this. Suppose I have taken something like this. So this ketone is in conjugation with double bond. So what is my first step? Step 1 is go to beta location containing, मैं थोड़ा कंप्लीट लिख देता हूं, डबल बॉन्ड, बिकॉज हो सकता है कि बीटा लोकेशन एक इधर भी हो. सो हमें उसमें जाना है, उस बीटा लोकेशन पे जाना है जहां पर डबल बॉन्ड है. स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, रब ऑफ CC double bond completely looking towards C double bond O or CHO bond. Step 3, where you are standing now, give that carbon double bond O, क्योंकि आपने 2 बॉन्ड मिटाया है, ठीक है? and to another carbon supply how many H? 2H, and you have the answer. So where you are standing now, give that carbon double bond O and to another carbon supply 2H. So this is simple, right? Right? And where I am standing now, जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ज्यादा हो गया था उसको हटा लेना, ये डबल बॉन्ड, और इसको हमने क्या दे दिया? 2 हाइड्रोजन. So in the question part ध्यान में रखना कि बाय मिस्टेक यहां पर ऐसे होना चाहिए था, राइट? अगर CH2 लिख दोगे तो इसके बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं. आई हैव टोल्ड यू इन एडवांस दैट यू शुड टेक केयर ऑफ द हाइड्रोजन पार्ट. क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस रियल सिनेरियो में करने आपके लिए आसान हो जाएंगे. कैसे क्वेश्चंस आते हैं? हटाए इसको. तो यहां पर क्या बोला? दोनों जगह पर बीटा लोकेशन पे जाना है. अगर CC सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को मिटा दो, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को मिटा दो. जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर डबल बॉन्ड O बनाना है, ठीक है? बाकी चीजों को इंटैक्ट छोड़ देना है. और दूसरे कार्बन पर अगर एक बॉन्ड मिटाया है तो एक H दो, और 2 बॉन्ड मिटाया है तो 2 H दो. यू विल बी एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट फास्ट, राइट?
इसको हटाएं। जैसे एक सिंपल बैकअप क्वेश्चन लेते हैं, एंड देन समबडी वाज टेलिंग कि हमको पर्किन कंडेंसेशन करना है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर नॉट इवन पार्ट ऑफ मॉर्सन एंड वाइट, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स में अगर 21.18 वगैरह में जाओगे ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको लाइन से क्वेश्चंस दिखेंगे ये, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, जैसे मैं एक बैकअप प्रॉब्लम लेता हूं पहले। I take a cyclohexene and then carry out ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब ओजोनोलाइसिस मेरे लिए बड़ा सिंपल है कि ओजोनोलाइसिस मेरा हमेशा रिडक्टिव ही रहेगा। अगर ओजोनोलाइसिस लिखा है तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, जब H2O2 हम डालते हैं या किसी ने मुंह खोल के लिख दिया है कि ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, तो मेरा ओजोनोलिसिस हमेशा रिडक्टिव है। ये ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलाइसिस करने के बाद ए फॉर्म किया, तो उसमें ओजोनॉइड और मोनो ओजोनॉइड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपने ओजोनोलिसिस किया और फाइनल प्रोडक्ट दे दो। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू विल सी द जेईई सिलेबस, इट हैज यूटिलाइज्ड ओनली द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हम NaOH करते हैं। You have to form a product B. Second, we take something like CHO plus CH3 NO2 in presence of C2H5 O minus Na plus। देखना, अगर ये बेंजल्डिहाइड के साथ आया है या किसी ऐसे मटेरियल के साथ आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट एक्ट्स एज अ बेस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस व्हेन यू आर सीइंग सम अदर स्पीशीज, इट्स जॉब इज टू प्रोवाइड और एक्ट एज अ बेस। राइट, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं CHO plus CH3 CO whole to O C2H5 O minus Na plus। ये थर्ड क्वेश्चन ले लिया। सिमिलरली we take something like CH3 CH2Cl and C2H5O minus Na plus। These are the four questions, please do it। और ये पूरे सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़ना और उसको अप्लाई करना एंड सी इफ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी हैज इंक्रीज्ड और नॉट। जब तक आप तुम रियल टाइम में इसको अप्लाई नहीं करोगे, इट मे वर्क फॉर सम वेरी फास्ट, कुछ लोगों के लिए वर्क थोड़ा टाइम लेकर करेगा, बट इट शुड वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। कि आपके जो comfort level है with organic, it should increase। This is the basic idea of these lectures। Your comfort level should increase। तो हो गया सारा किसी का? सॉरी, अरे जितना मैंने उतना करो यार भाई, टेंशन नहीं लो, जो बुझा रहा है करो।
ओके इसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट मे टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मेनी ऑफ अस. इसको हटाए क्या? देखोगे कि क्वेश्चंस ना एक बार सिलेबस जब भी जे एडवांस का आता है तो उसको जरूर गौर से देखना. उसमें जो चीजें लिखी हुई है और जहां लगता है ना कि इसमें मेरा कंफर्ट लेवल थोड़ा कम है उसको जरूर देखना चाहिए. बिकॉज पास्ट 2 years आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट देने बहुत सिंपल है. जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिखता है आप मिटा दो और जिस जिस कार्बन से आपने डबल बॉन्ड मिटाया है वहां पे क्या बना दो? डबल बॉन्ड. ओ सो प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस विल बी CH2 CH2 the 4 times and then CHO. Right? Now you are forming something like NaOH. Let me complete this. And then there is alpha hydrogen which is extractable, so you will generate a nucleophile. What you do? You carry out nucleophilic addition. Right? हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैरी आउट किया और हम लोगों ने बना दिया OH. So probably many of us can make this. Right? Or if it will lose water we can form something like this CHO. Now what is in the real time scenario? You may or may not be very comfortable with organic chemistry, but if you will look for the options, you will not find many options even qualifying for the aldol. And why you should think for aldol is there is alpha hydrogen, right? And if you look around the option, only this option is beta hydroxy. आप जो भी बुक बना रहे होगे वहां पर अगर ऑप्शन देखते हो, मैं आपको चैनलाइज कर रहा हूं, तो this is beta hydroxy and this is double bond is in conjugation, and I may or may not be very comfortable with how it has formed. तो हमें क्या करना था? अगर मैं फ्रंट से नहीं आ पा रहा हूं तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा. I'll go to the beta location, I will rub this off. Where I am standing now, make that double bond O. राइट? मैंने ऐसा कुछ बना दिया. नाउ हाउ टू गिव एल्कीन्स फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस? क्या करते हैं? O को मिटा देते हैं और जहां से हम लोगों ने मिटाया है उसके बीच में क्या बना देते हैं? डबल बॉन्ड. तो इट could be a possibility that I am not very convergent or during pressure situation I am not able to see what is happening from the front, but at least look for the option, and the option says that अगर आपने एकदम बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं किया, अपने ओजोनोलाइसिस ही नहीं कर पाए, तो it could be a problem. But if you are able to do it, this question should not take more than 15 to 20 seconds. कि अच्छा ऐसा होगा, एल्डोल है, ऑप्शन गए, ये सब ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है, टिक मारे और टिक मार के आगे निकल गए. मोस्ट ऑफ द टाइम एज यू हैव नॉट थॉट एक्यूरेसी विल बी हायर बिकॉज दिस इज प्रिपरेशन. राइट? प्रिपरेशन में क्या होता है कि व्हेन यू आर हैव सीन द क्वेश्चन और इट्स क्वेश्चन इज नोन, प्रॉब्ली मिस्टेक विल बी लेस. ठीक है? अगर हम वहां पर जाकर कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स कम होते हैं. होता वो बहुत लोगों के साथ कि एग्जामिनेशन में मिस्टेक्स ज्यादा होते हैं. वो इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारा वे ऑफ प्रिपरेशन उतना एक्यूरेट नहीं है. हम प्रिपरेशन करते समय बहुत बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम हर एक क्वेश्चन का आंसर देख रहे होते हैं. राइट? सो वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड इन अ मैनर दैट ओके यू शुड नॉट एबल टू फाइंड योर ओन मिस्टेक. अब अगर हम ऐसा करें कि हम 2 घंटे क्वेश्चन करने के बाद मिस्टेक करें, मिस्टेक आइडेंटिफाई करना चालू करें, तो हमारे धीरे धीरे मिस्टेक्स कम हो जाएंगे. 2 घंटे के बाद हमने चेक किया, पहली बार में हो सकता है कि 20 मिस्टेक हो, बट विथ टाइम
these mistakes will reduce because examination says exactly that. ठीक है, मैंने बहुत लोगों को बुकलेट जेईई मेंस के जहां पे मैं पढ़ाता हूँ मैंने दिया है तो उसमें आंसर नहीं है, तो बच्चे पूछने आते हैं सर आंसर ही नहीं है। मैंने बोला कौन सा एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ आंसर सप्लाई करता है? तो बोला हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है कि नहीं है? आपको एग्जामिनेशन में कैसे पता चलता है कि आपको आपका आंसर सही है कि नहीं है? सिंपल, योर ट्रेनिंग मेथड हैज टू बी प्रॉपर एंड द ट्रेनिंग मेथड प्रॉपर यही बोलता है कि आपको अपने सॉल्यूशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है, राइट? मे बी दिस विल जनरेट सम प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम, लेकिन इट विल ऑल्सो हैव अ एडवांटेज ऑफ 95 क्वेश्चंस। क्या आप अगर खुद से श्योर होना चालू कर देते हो ट्रेनिंग में, ओके दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट एटलीस्ट फॉर अ ड्यूरेशन, राइट? 5 days 6 days आप सॉल्व करने के बाद अगर अपनी एक्यूरेसी को एनालाइज करते हो तो चांसेस ऑफ योर एक्यूरेसी इंप्रूविंग विल बी हायर। लाइक इट्स लाइक माय हैंड इज वीक and I am working on my leg strength, क्या होगा? This is not a proper preparation because preparation requires analysis from your part. So it could be कि मेरा ऑर्गेनिक खराब हो सकता है, मेरा मैथ्स खराब हो सकता है, but the chance is that why it is still bad because we are not analyzing it properly. जो सब्जेक्ट खराब हो कम पढ़ो, कूद के पढ़ो, 15 मिनट पढ़ने के बाद 20 मिनट की छुट्टी लो, लेकिन वो 15 मिनट पढ़ो, दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट। बिकॉज ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ इंप्रूव करने ऐसा है नहीं, 3-4 दिन वर्क करोगे यू विल फाइंड योरसेल्फ डिफरेंट, राइट? द सेकेंड क्वेश्चन वाज समथिंग इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट आई स्पोक अबाउट, CHO CH3 NO2 C2H5 O minus Na plus, right? So this location is also acidic. Why this location is acidic? Because NO2 will be able to stabilize the carbon ion, and step is simple: generate nucleophile, go to nucleophilic location, add the nucleophile, convert double bond O to OH, and after that if you want to carry out the dehydration it will surely happen via E1CB. So this will be the product. So come to the third reaction. Third reaction is unfortunately a name reaction which is known as Perkin condensation. Unfortunately it is a name reaction which we call it as a Perkin condensation. Recently ये क्वेश्चन आ चुका है, 2015-16 के बीच में कभी आ चुका है। CHO CH3 CO CH2 CO CH3, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। Again this location is acidic, right? Because again there is a stabilization. So what I do, I make the nucleophile. This is my first step, how to give product from the reactant, go to the alpha location, eat H plus to generate nucleophile. Then what is the second step? Chipkow nucleophile. So I just doing the work of copying, I just copied the nucleophile, right? Now if this is a medium where the plenty of base is present, this is still R, this is CO and this is Z. Should we say by? Yes. Not V. So let's see. इसको बाई बोल दिया, जाने दो यार, ये बन गया C डबल बॉन्ड OOH, ये भी इस माइनस को स्टेबलाइज कर लेगा क्योंकि इसके पास प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है,
इसलिए it has also capability of losing water under even CB. So the final product you are forming is something like CH double bond CH COOH. So this is unfortunately known as Perkin condensation. Right? But there is nothing Perkin about it. It's all aldol. Right? We went to alpha location, created the nucleophile, carried out the nucleophilic addition, and then, right? So you may find multiple book, multiple mechanisms, but this is my mechanism. This mechanism says, go to the alpha location, I went. Carry out the nucleophilic addition, I did. I found it something like RCOZ, I carried out the nucleophilic substitution, and then OH minus being a bad leaving group, I carried out E1CB because there was a group to stabilize the conjugate base in form of COH, so I carried out the dehydration. Unfortunately, this is a Perkin condensation, right? But as a kid, growing kid, I learned it as a variation in aldol. Clear? The next question is again the continuation of the basic of aldol condensation. छोड़ दूं? Cn माइनस है, नॉट छोड़ दूं मतलब जाने के लिए नहीं, मतलब उसको डिस्कशन छोड़ दो क्या? CH3 CH2 Cn, Cn वाले लोकेशन पे जो CH है उससे H प्लस निकाल लो, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लो, न्यूक्लियोफाइल को चिपका दो, डबल बॉन्डों को OH में कन्वर्ट कर दो और बाद में डिहाइड्रेट कर दो, जो होना होगा हो जाएगा. ठीक है? So all these are the variation in aldol condensation, right? All these are variation in aldol condensation. So unfortunately there are reactions which are similar to aldol, but they will not carry out nucleophilic addition, right? And the reason is obvious. They might be having a good leaving group, right? They might be having good leaving group. So one of the reaction is Claisen condensation. So simple है कि Claisen condensation आप reactant साइड से कब सोचोगे? An ester having extractable alpha hydrogen in presence of strong base. एक एस्टर जिसके पास एक्सट्रैक्टेबल अल्फा हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ Claisen कंडेंसेशन. प्रोडक्ट साइड से कब सोचोगे? when beta keto ester is present, right? When beta keto ester is present, you can think about Claisen condensation, right? यहां पर suppose you take an ester like this in presence of C2H5 ONA. So this is your reaction. How to give product. So step 1 is very clear to you. We have already talked about this location being acidic. So step 1 is go to alpha location and extract H plus to generate nucleophile.
ये मेरा स्टेप 1 है कि आप अल्फा लोकेशन पर जाओ और क्या एक्सट्रैक्ट कर लो, H plus to generate a nucleophile. Now it's not in our hand, right? When aldehyde and ketone was there, its characteristic was nucleophilic addition. So I was carrying out nucleophilic addition. I went to nucleophilic site, added the nucleophile and converted double bond O to OH. Right? Now this is an acid derivative. So what is the characteristic of acid derivative? Nucleophilic substitution. जैसे किसी ने बोला बाई बोलना, राइट? इससे सिंपल क्या हो सकता है, उसको बाई बोलते हैं. तो किसको बाई बोलते हैं? OCH3 को. बोल दो यार. CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, OCH3 जनरेट किया, खटाक से आया है, इसको क्या बोला? बाई. Right? So this is the product which has formed. Clear है? तो अगर आप देखोगे कि इस तरह के प्रोडक्ट देने आपके लिए आसान होने लगेंगे अगर आपने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंप्लीफाई करके रखा है तो. ठीक है, लास्ट चीज करवाऊंगा. I know you must be tired, but you have to also give consideration. If you are tired, I have to be at least little bit more tired. ठीक है, इतना क्लियर है क्या? इसको जल्दी से नोट करो. लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इज आयोडोफॉर्म. बिकॉज आयोडोफॉर्म में रिसेंटली अच्छे क्वेश्चंस आए. डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस. आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दोज क्वेश्चंस विथ इंडिपेंडेंट माइंड. You will be able to answer few questions for yourself also. But there was a recently very good question. 13-14 के आसपास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आयोडोफॉर्म से आया था. तो I want you to at least have a look at the reaction mechanism part, right? And this is our reaction mechanism. It's your reaction mechanism. It's not कि somebody said यहाँ से ये निकाल लो, वहाँ से ये निकाल लो. क्यों भाई? पता ही नहीं चलता क्यों निकाल रहे हैं. यहाँ पर आप अपना एसोसिएशन प्रिपेयर करना चालू करो. एंड मोर सो इन इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक इज मच मोर इजियर, राइट? आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती. देयर आर सर्टेन रूल्स, राइट? देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स अपॉन विच यू स्टार्ट थिंकिंग और सारी चीजें हो जाएगी. ठीक है, हो गया क्या? ये नोट कर लिया क्या? अभी घर जाना है तो नोटिंग का स्पीड बढ़ गया नहीं? सो आयोडोफॉर्म टेस्ट सबसे पहले होता क्या है, कौन देगा? राइट. तो जल्दी से मुझे कवर कर लेने दो आयोडोफॉर्म टेस्ट. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें NaOI की जरूरत पड़ेगी. This is as good as NaOH plus H2. आयोडोफॉर्म नेम सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां पर हमें एक कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल जाता है. लेकिन अगर आप ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ भी सेम काम करोगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म में चेंज नहीं होगा. तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा? तो एल्डिहाइड और कीटोन having this block, aldehyde and ketone having this block, and let's name this block I block. ऐसे कुछ भी नाम दे सकते थे. I block will give iodoform test. तो हमें iodoform test एल्डिहाइड और कीटोन के साथ सोचना है. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. All those alcohols which can be mentally oxidized, ना आपको ऑक्सीडाइज करना है,
dies to have I block. Will give iodoform test. So ऐसे अल्कोहल्स जिसको हम ऑक्सीडाइज मेंटली ऑक्सीडाइज करके विजुलाइज कर पाए कि ये एक ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं जिसके पास आई ब्लॉक रहता है, तो ऐसे अल्कोहल्स भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे. लाइक only primary alcohol which goes for iodoform test. When I am saying only primary alcohol, I mean only unsubstituted one. There could be a better version of it which can give iodoform test, but only primary alcohol. अगर आपने अल्कोहल बनाया है और R और OH से बनाया है, right? तो only primary alcohol which gives iodoform test is ethanol. So लाइफ में अगर आपसे कभी कोई इथेनॉल वर्सेस एनी प्राइमरी अल्कोहल का डिफरेंस पूछता है तो आंख बंद करके उसके मुंह पे मारना है, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और बाकी नहीं देगा. तो इफ यू आर फेसिंग सच क्वेश्चन, ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट इज इथेनॉल. ऑल दोस सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स दिस ब्लॉक, ये इसको आइडस ब्लॉक बोल देते हैं. आइडस ब्लॉक विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. ऑल दो सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हिच कंटेन्स दिस आइडस ब्लॉक विल गो फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट. नो TA, नो टर्शियरी अल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट because we were in agreement that tertiary alcohol cannot be oxidized. At least मेरे लिए तो ये सिंपल सी चीज है. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई. So somehow alcohols get oxidized under this condition to corresponding aldehyde and ketone, right? So actually what is happening in iodoform test, we have to look very closely, because it's my proof that aldehyde and ketone, if it would have contained a good leaving group, it would not have gone for nucleophilic addition, it would have gone for nucleophilic substitution. इसको हटाए. सो इसका रिएक्शन, इसके क्वेश्चन अच्छे आए हैं. मतलब हाल फिलहाल में अगर देखोगे, पिछले साल को छोड़ दो तो लास्ट 3 years वे गुड इनफ फॉर IITs. मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उन्होंने रेज किया था एंड सडनली चेन्नई हो गया, राइट? यहां पर CH3 Cu CH3 कुछ भी ले सकते थे. वी हैव टेकन समथिंग लाइक CH3 COCH3, राइट? और टेक R if you are more generic. ठीक है. अब यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि NOH plus H2 is OH minus X plus and X minus, right? HX is a stronger acid than water, so X minus and OH minus में OH minus will be a stronger base. Weaker acid, a stronger will be the conjugate base. तो अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ फॉर्म कर लिया, जैसे इसके बहुत इनोलिक फॉर्म पे भी हम डिस्कस कर सकते थे. I'm just avoiding that. ठीक है, इसके इनोलिक फॉर्म से भी हमें इसका एक मैकेनिज्म दे सकते हैं. इसका इनोलिक फॉर्म बना दो, CH2 डबल बॉन्ड COH. अब तुम्हारे पास क्या है? OH माइनस और X प्लस है ना? तो X प्लस कहां अटैक करेगा? CH2 डबल बॉन्ड पे. क्या बन गया? OH OH. वो कौन सा डायोल है? तो जेमिनल डायोल है, नॉट विसिनल डायोल. तो क्या करोगे? पानी पी लोगे. Still you can get a mechanism of your own, right? And that is, you have to understand, these are good mechanisms, they are decent mechanisms, because there will be certain questions which will help you. If you are not able to get through the mechanism using aldehyde and ketone, look for the enol form.
some point of time it will answer on your behalf, but you have to take care of that form also sometimes. तो ऐसा हो गया. ऐसा होने से कैसा हुआ, ये लोकेशन कम एसिडिक हुआ या ज्यादा एसिडिक हुआ? ज्यादा एसिडिक हुआ. तो OH माइनस को और अच्छा लगेगा कि चलो चलो एक H प्लस और इसका खा जाते हैं. एंड व्हाट इट डज, H2 C double bond R. Similarly, this location becomes more and more acidic. अब ध्यान में रखना कि जब इसके क्वेश्चंस करने जाओगे, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, अगर मैं डिस्कस कर दूंगा तो सारा मैकेनिज्म का मजा तुम्हारा चला जाएगा. तो खुद से आईआईटी के क्वेश्चंस देखना तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये सब अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत हेल्प करती है रियल टाइम में. अब ये लोकेशन क्या हो गया, और एसिडिक हो गया. तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड R. राइट. अब बहुत बार बच्चा पूछता है कि कहां पर एसिडिक, यहां पर भी अच्छा हुआ, यहां पर भी लीव कर सकता था. होता है ना जब हम हाइपोथेसिस में बात करते हैं, यहां पर भी लीव कर सकता था, यहां पर भी लीव कर सकता था, यहां पर भी लीव कर सकता था. क्यों ऐसा हम बोल पा रहे? ऐसे समझो, CH3 माइनस is conjugate base of CH4. CH2X minus CH3X का conjugate base क्या होगा? CH2X minus CH2X2 का conjugate base क्या होगा? CH minus X2. और CHX3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3 माइनस. राइट. तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. एक स्टूडेंट 80 लाया, वो अच्छा है कि खराब है? डिपेंड्स. वो 80 उस क्लास का हाईएस्ट है या क्लास का लोएस्ट है. 85 लाया तो और अच्छा, 90 लाया तो और अच्छा. लेकिन किसका सिलेक्शन होगा वो तो उस एग्जामिनेशन पे डिपेंड करेगा ना कि उस एग्जामिनेशन का कट ऑफ क्या गया है. तो CH4 इज द वीकेस्ट एसिड अमंग ऑल. सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. वीकर अ बेस, बेटर लिविंग ग्रुप, इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वीकेस्ट हो गया. और ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपैरिजन टू CH3 माइनस, CH2X माइनस एंड CHX2 माइनस. These three does not leave. How we have this observation? By knowing the reaction. जैसे किसी बच्चे को 90 पर आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कॉलेज के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 90 वाले से ज्यादा का सिलेक्शन होता होगा. सिमिलरली व्हेन वी सी iodoform टेस्ट, व्हाट वी रियलाइज कि दिस हैज नथिंग हैज लेफ्ट हियर, नथिंग हैज लेफ्ट हियर, नथिंग हैज लेफ्ट हियर. CH3 माइनस ने लीव नहीं किया, CH2X माइनस ने लीव नहीं किया, CHX2 माइनस ने लीव नहीं किया. But in this case, when OH minus comes, ये क्या हो जाता है? लीव कर जाता है. Because with time this is converting into RCOZ. ये RCOZ टाइप में कन्वर्ट हो गया. और हमें आदत है कि जब भी RCOZ देखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? By. So this is right time to establish this fact that if it would have contained a good living group, it would have gone for nucleophilic substitution. Right? So here the product will form RC double bond O, OH and CHX3. In reality, you understand this H plus will come mostly from here and it will exist as a salt. But I am fine and this is in yellow PPT.
and this is why iodoform. But whenever you see something like, see, many times you will find this, and बच्चा लोग is doing something NaOCl. एक्सपीरियंस है भाई कि इसको बाई बोल देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बनाकर, CCl3 बनाकर बाई बोलेंगे, और वहां पर क्या मुंह पे मार देंगे, OH, या उसको सॉल्ट बना देंगे. इतना टाइम नहीं है ना भाई, इंस्टाग्राम कौन चेक करेगा, तो इतना टाइम ऑर्गेनिक के लिए नहीं है. We don't have this much of time. So we understood this is an iodoform for you. There are so many concepts hidden into it. We talked about the living character and how living character will become better and better when the base is, or the living group is becoming weaker and weaker. So weaker a base, better living group it will be. This sounds cool. This is easy. ठीक है.